Assalamu alaikum class. So today it's our lecture number 5th of chapter number 1, Introduction to Computer. Today our objectives are characteristics of a computer and capabilities of a computer. So first of all we will discuss about the characteristics of a computer. Okay student, tell me what actually comes in your mind when you listen this word characteristics of a computer. What do you think by this? If you know its answer, then kindly raise your hand, then I will switch on your mic, or you can also reply me its answer on a chat box. Okay, we will continue further. The first is machine. Look at the student, computer is basically a machine. It's an electronic device or machine. It can actually animate the objects, and it must need outside intervention for it to run. What do you mean by this? I already told you about this, that computer is just like a blank page. Whatever you will write, computer will actually work accordingly. So this is very important, that what you will actually write on a computer. What do you mean by write here? This means actually that what you will write as a programmer. Always remember that computer actually understand only one language. You already know about this, that computer can only understand machine language. So by the machine language, you basically give instruction to the computer that what computer have to be performed. We give instruction to our computer in our own language. For example, हम keyboard से button press करते हैं A, capital A. Suppose that I press capital A from the keyboard. What actually happened? कीबोर्ड से बेटा वो A कंप्यूटर में नहीं जाता. Why? Because computer cannot understand that our language, human language. Computer can only understand binary language or machine language, right? Binary language, machine language, these both are the same thing, right? और आपको मालूम है कि बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? Only two, 0 and 1. So when I press capital A from the keyboard, तो कीबोर्ड से बेटा जो सिग्नल कंप्यूटर को जाता है that is 65 of decimal. Now what is decimal? Decimal is also a number system. तो बेटा जब कंप्यूटर के पास वो 65 का सिग्नल जाता है, then computer will actually convert that 65 into the binary equivalent. ठीक है, ये प्रोसेसर की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से उसको कन्वर्ट करता है. इसका बाकायदा पूरा प्रोसीजर है. We will discuss about this in the chapter number 5, data representation, that how to manipulate these values. तो कंप्यूटर बेटा उस 65 को क्या करता है? कन्वर्ट करता है into the binary number. And the binary equivalent of 65 is 1, 5 times 0 and then 1. तो जब कंप्यूटर को बेटा ये वैल्यू बाइनरी की मिलती है, then computer can understand these. Now the question is that why this machine is a characteristics of a computer. वजह ये है कि देखिए बेटा, मशीन जो है वो थकती नहीं. Computer cannot tired, computer cannot bore, right? So it can do your work again and again without any hassle, without any problem. Next thing is that it can only do things for which it is designed. Always remember that computer have its limitations. ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा कंप्यूटर कुछ भी कर ले, ठीक है?
कंप्यूटर की भी एक सर्टेन लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज हैं. फॉर एग्जांपल, we can do multiple different tasks on a computer, but वहीं कुछ ऐसी भी चीजें जो हम कंप्यूटर से नहीं करवा सकते. फॉर एग्जांपल, मैं कंप्यूटर से कहूँ कि मुझे एक पानी का ग्लास ला कर दे दे, तो ये पॉसिबल नहीं है कंप्यूटर से. ठीक है, उसके लिए कंप्यूटर की दूसरी कुछ फॉर्म्स बनाई गई हैं, रोबोट्स वगैरह, उनके जरिए ये बिल्कुल पॉसिबल है. बट द कंप्यूटर विच इज एक्चुअली अवेलेबल ऑन योर डेस्क, मैं उसके बारे में अगर बात करूं तो उसकी लिमिट्स हैं. ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट द रोबोट्स, देन अगेन रोबोट्स आल्सो हैज इट्स लिमिटेशंस. ठीक है ना, रोबोट की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस है. रोबोट से आप डिफरेंट काम करवा लेंगे, बट रोबोट से आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवा सकते, रोबोट से आप प्रेजेंटेशन नहीं बनवा सकते, राइट? So these all the things also has its limitations. चाहे वो मशीन की कोई भी टाइप हो, रोबोट हो, ठीक है, कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, रोबोट हो, या पर्टिकुलर कंप्यूटर जो आपके डेस्क पे रखा हुआ है वो हो, या मोबाइल फोन आपके सामने, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ अ कंप्यूटर, तो उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक. It is electronic. It made up of electronic circuits. It runs on electrical energy. देखिए, कंप्यूटर जो है ना बेटा, वो बहुत से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना है. It has many different electronic components. It has IC chip, it has microprocessor, it has transistors, it has motherboard, right? So there are actually many different electronic components in a computer, and these all electronic components actually work on a machine language. They can only understand 0 and 1. So what actually is the benefit of 0 and 1? 0 means off, 1 means, 0 means off and 1 means on. होता क्या है बेटा, ये बेसिकली आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसकी पल्स को रिप्रेजेंट भी कर रहा होता है. When the signal is 0, then electricity is cut off in the signal form, right? When the signal is 1, it means electricity is on. तो जो सिग्नल है, इसके ऑन और ऑफ की सूरत में ही ये तमाम कैलकुलेशन कर लेता है. यहाँ ये याद रखिएगा, यहाँ 0 और 1 से बिल्कुल भी ये मुराद नहीं है कि पावर ही बिल्कुल बंद हो जाना या पावर का खुल जाना वापस, ऐसा नहीं है. थर्ड इज ऑटोमेटिक. Computer is basically a machine which can automatically do many different tasks automatically. How? Once you start a program, it continues to run without outside intervention. Always remember that computer must need a once outside intervention. ठीक है, एक मर्तबा से आपकी जरूरत पड़ती है. आउटसाइड इंटरवेंशन से मुराद यहाँ पर क्या होगा, एक यूजर की उसे जरूरत पड़ती है स्टार्ट में. When user start a program on a computer, then now it is a duty of a computer to work automatically on that task. उसके बाद उसे यूजर की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती. Okay, there are many examples of this. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको अभी सॉफ्टवेयर की देता हूँ, by which we are discussing about these topics, right? Like Zoom, right? होता क्या बेटा, देखें, स्टार्ट में आपने क्या किया, जब ये क्लास आपकी स्टार्ट हुई अभी, आपने Zoom के सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर दिया, एंड नाउ इट्स कंटिन्यूअसली वर्किंग. इसकी कोडिंग में टाइम लिमिटेशन दे दी गई है. डिफरेंट पैकेजेस है, उनमें से बेसिक जो इस वक्त यूज किया जा रहा है, it has a coding for the 40 minutes, and after that 40 minutes that class will be end automatically, right? आप
आपकी ज़रूरत यानी यूज़र की इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट में थी कि जब आपने इस क्लास को स्टार्ट किया, लिंक पे क्लिक किया, क्लास स्टार्ट हो गई. नाउ it's working by itself. It do not need any outside intervention. Now when time will be finished, then it will automatically close. There are many different examples also available. For example, मैं आपको एक छोटी सी एक और example देता हूँ. uh, Many of you already used Careem service. उसमें क्या होता है बेटा, आप उनकी एप्लीकेशन से उनकी जो कार की सर्विस है आप उसे पिन करते हैं. You actually give your current location and the destination. Then what happen? आपकी राइड बुक होती है, आपके घर पे ड्राइवर आता है, वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है एंड देन फिनिश. इस पूरे सिनेरियो में क्या हुआ? You have actually start at the beginning when you give your current location and your desired destination. Then what happen? All the scenario will work automatically. It do not need your intervention. Your means outside intervention. It will work automatically, right? तो ये बेसिकली ये पूरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके जरिए ये सब हो रहा है. बट ये सॉफ्टवेयर और ये हार्डवेयर पूरा मिल के एक बेटा मशीन बनती है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है. हम चाहे एप्लीकेशन की बात करें मोबाइल की फॉर्म में या हम सॉफ्टवेयर की बात करें कंप्यूटर की फॉर्म में, ठीक है. तो ये दोनों चीजें मिलकर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों मिलकर आपका एक क्या बनाते हैं, सिस्टम जिसे कंप्यूटर कहते हैं. द नेक्स्ट इज डेटा मैनिपुलेट. कंप्यूटर कैन एक्चुअली मैनिपुलेट डेटा following specific rules. It can perform arithmetic functions such as addition, subtraction, multiplication और division. देखिए बेटा these are the binary operation actually. ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है ये हमारे बाइनरी ऑपरेशंस हैं. व्हाई these are the binary operations? Because it must need a minimum two values, right? Binary is a combination of two word, bi and nary. Bi means two and nary means system. तो ये बेटा बाइनरी ऑपरेशंस हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. वजह क्या है कि इन्हें मिनिमम दो वैल्यूज चाहिए होती हैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. मींस आपको क्या होगा, आप लाइक 3 + 4. नाउ 3 and 4 दीज आर द टू डिफरेंट वैल्यूज. तो ये जो प्लस है इसको लाजमी दो वैल्यूज चाहिए हैं, ठीक है, तभी ये परफॉर्म होगा. अगर आप कैलकुलेटर पे भी कभी ट्राई करें, when you press 3 then plus then 4 तो आपको आंसर दे देगा 7. but when you press 3 then plus और उसके बाद आप अगर इक्वल टू का बटन प्रेस करें और आंसर इससे लें तो आपको आंसर नहीं देगा, एरर देगा. इफ यू आर यूजिंग a scientific calculator then it will actually gives you an error. So it means these are the binary operation. इसी तरह एडिशन के अलावा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है. These are also a binary operations. So computer can actually perform these arithmetic functions or binary functions. Computer can also compare the data. What do you mean by compare the data here? देखिए बेटा कंप्यूटर जो है ना ये कंपैरिजन जो करता है, इसी की वजह से इतना एडवांस जो टेक्नोलॉजी अब चल रही है. For example, I talk about the AI, artificial intelligence. What actually happened in the artificial intelligence? Artificial intelligence actually work by the comparison of data. How? होता उसमें ये है बेटा कि कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट
जो उसमें समझ लीजिए सेंसर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में कह रहा हूँ, लाइक रोबोट, ठीक है, उसमें डिफरेंट सेंसर लगे हुए होते हैं, एंड बाय द यूज ऑफ दीज सेंसर इट एक्चुअली गेट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, एंड देन उस डेटा को जो है उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिसीजंस लेता है। फॉर एग्जांपल, शायद आपने चेक की हो, बहुत एडवांस एक कार है टेस्ला 3, यू कैन फाइंड ऑन यूट्यूब आल्सो। दिस इज बेसिकली अ ड्राइवरलेस कार। होता क्या है, जैसे करीम के आप राइड बुक करते हैं, इसी तरह उबर की भी है। तो उबर ने बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज में ये सर्विस प्रोवाइड भी कर दी है। देयर इज आल्सो अवेलेबल अ ड्राइवरलेस कार इन द उबर सर्विसेज। उसमें होता क्या है बेटा कि आपने अपनी राइड बुक करवाई, ठीक है, देन दैट ड्राइवरलेस कार विल एक्चुअली अराइव टू टेक यू। देन व्हाट हैपन, और जब वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंच गई है, ठीक है, आपकी सॉरी करंट लोकेशन तक पहुंच गई, देन यू विल एक्चुअली सिट ऑन द कार, और बिना ड्राइवर के वो कार जो है आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी, ठीक है। अब वहां रास्ते में क्या होगा, तमाम जो उसके मोड़ होंगे, ठीक है, और सामने जो भी उसकी व्हीकल आ रही है उन सबको वो मॉनिटर करते रहेंगे। उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल सेंसर्स लगे हुए हैं विच एक्चुअली टेक डेटा फ्रॉम 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री मींस उसकी चारों तरफ से वो डेटा को कंटिन्यूसली कलेक्ट कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, और उनके कंपैरिजन पे वो डिसीजन ले रही होती है कार खुद, कि कहाँ से उसने किस जगह पे उसने स्पीड स्लो करनी है, कहाँ तेज करनी है, कहाँ टर्न करना है, एंड दैट विल एक्चुअली टेक यू एट योर डिजायर्ड लोकेशन थ्रू द गूगल मैप। तो ये याद रखिएगा, ये जो डेटा मैनिपुलेशन है कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। एंड द सेकंड इज जो डेटा की कंपैरिजन है, ठीक है, इसी पर रहते हुए कंप्यूटर जो है बेटा वो डिसीजंस ले सकता है, ठीक है। अगेन मैं ये बात बता दूं, कंप्यूटर जो डिसीजंस लेता है वो एक खास लिमिट में है, ठीक है। कंप्यूटर के अलावा खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। आप उसको प्रोग्रामेटिकली ये इन्फॉर्म करते हैं कि वो कहाँ क्या डिसीजन ले सकता है, देन इट कैन टेक अ डिसीजन, अदरवाइज कंप्यूटर इज नॉट कैपेबल टू टेक एनी डिसीजन। Next is a memory. Computer has a memory. It means it has a capacity to remember what it has done. देखिए मेमोरी जो है, जैसे हम इंसानों के पास बेटा अल्लाह ने हमें दिमाग दिया, ठीक है, हम उसमें डेटा को स्टोर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है, ठीक है, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। It can actually store instruction in its memory and follow these through an edit. अब देखें होता क्या है बेटा, जैसे हम इंसानों के पास मेमोरी, ठीक है, इसी तरह मैंने कहा कि कंप्यूटर के पास भी मेमोरी है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेमोरी। नंबर वन देखें, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हम इंसानों के पास जो मेमोरी है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, यानी उसकी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, देन इट्स कैपेसिटी इज वेरी ह्यूज, ठीक है, एज कंपेयर टू द कंप्यूटर मेमोरी। लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी वो लिमिटेड है, बट द प्रॉब्लम इज द रिकॉल, ठीक है, अभी आगे टॉपिक ही आएगा, देन वी विल डिस्कस इट फर्दर मोर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लॉजिकल फंक्शन। ये लॉजिकल फंक्शन बेटा वही चीज है जो मैंने ऊपर कहा ना, कंपैरिजन ऑफ डेटा, ठीक है, इसके बारे में इसमें जरा और कुछ देखते हैं। इट कैन आल्सो परफॉर्म लॉजिकल फंक्शन। इट कैन बी गिवन a set of instruction that tell what it must do and how it must do it. It can produce result upon completion of these operations as instructed. देखिए बेटा लॉजिकल ऑपरेशन जो है ना कंप्यूटर में ये बड़ी अहमियत है। अच्छा, लॉजिक्स कंप्यूटर में आती कहाँ से, इफ देन एल्स स्टेटमेंट से, ठीक है।
मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहूँ कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनाए, ठीक है, और वो आपके नेम को 10 टाइम प्रिंट करे, देन व्हाट यू विल डू, you will actually make this program by the use of loop. और इस लूप में क्या होगा, आप एक वैल्यू जो है बार बार इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, आगे की चीज़ है, डिस्कस होगा मजीद डिटेल में। लेकिन उस लूप में मिसाल ये ले लें कि हर मर्तबा जो प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, उसमें एक वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब एक मर्तबा टास्क एक पूरा परफॉर्म होगा, दोबारा वो टास्क परफॉर्म करने आएगा तो उसको एक वैल्यू एक्स्ट्रा मिलेगी। लाइक अगर मैं कहूँ ये कि इनिशियली मैंने उसको 1 वैल्यू दी थी, देन ऑन अ नेक्स्ट round it has a value 2, then again on the next round it will be increment with the 1, then it will be 3, तो इसी तरह नेक्स्ट में 4 and 5 and then so on। होता क्या है कि यहाँ पर आप लॉजिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, व्हेन द वैल्यू इज 10 देन स्टॉप, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पर उसके पास डिसीजन की एक पावर आ गई, that when the value is 10 then it has to be stopped, otherwise continue, ठीक है। तो ये जो लॉजिकल फंक्शंस होते हैं ये बेसिकली आपके कंपैरिजन ऑफ डेटा से भी मिलते हैं कि इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे हम ग्रेड वगैरह निकालते हैं, ठीक है, लाइक आपके ग्रेडिंग होती है, फॉर एग्जांपल सपोज करें कि आपने कंप्यूटर को एक परसेंटेज दी है 80, ठीक है, 80%। नाउ कंप्यूटर हैज टू decide that which grade this 80% lies। देखिए उसको आप किस तरह प्रोग्राम करेंगे, यहाँ पर अभी 80 है, ये बाद में चेंज हो सकती है, तो फिर दोबारा से प्रोग्राम तो नहीं लिखेंगे आपने। प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि यू हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शन एट वंस एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर should have to be calculate these values or these data, और उसके मुताबिक जो है वो एक्यूरेट आपको उसका आंसर दे रहा हूँ। लाइक नाउ वी हैव 80%, राइट, नेक्स्ट टाइम मे बी वी हैव 75%, तो वहां पर फिर क्या होगा, अब उसने तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना है, तो उसमें आप कैसे बेटा उसे देंगे, आप उसे इस तरह से देंगे कि जिसके जरिए वो लॉजिक्स को समझ सके। फॉर एग्जाम्पल आप उसे इस तरह की कंडीशन देंगे कि इफ, अब वो जो वैल्यू है वो कहीं कंप्यूटर में एग्जिस्ट कर रही होगी, उसकी एक लोकेशन होगी, वो जो 80% मैं कह रहा हूँ 80% वो कहीं वैल्यू कंप्यूटर की मेमोरी में एग्जिस्ट करती है ना, एंड दैट मेमोरी मस्ट हैज इट्स एड्रेस, तो वो मैं एड्रेस दूंगा उसे, दैट इफ, और वो एड्रेस दूं, फॉर एग्जांपल वो जो एड्रेस है वो है L5 सपोज करें, तो मैं उसे यूं दूंगा कि इफ L5 is greater than 80% then A1 grade। उसके आगे क्या दूंगा, कंडीशन कंटिन्यू करूंगा, एल्स, वरना, इफ L5 greater than 70% then A grade, फिर कंटिन्यू आगे करूंगा इसको, else if L5 is greater than 60% then grade B, ठीक है। तो इस तरह से हम जब देंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसे अब जो भी वैल्यू मिलेगी वो ऑटोमेटिकली आपको उसका जो है रिजल्ट दे देगा, कि अगर 80% से बड़ी है वैल्यू तो वो क्या दे देगा उसे, A1 ग्रेड। यहाँ पर आप 80 से ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों दोनों जो इसके सिंबल्स हैं वो भी दे सकते हैं, तो फिर क्या होगा, कंडीशन वो इस तरह लेगा दैट इफ द वैल्यू इज 80 or greater than 80 then in the both condition that will return you back A1 grade। इसी तरह 70 के लिए भी आप इक्वल टू एंड ग्रेटर देन दोनों सिंबल देंगे,
एंड सेम फॉर द 60%, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, इसकी वजह से आपने उसे लॉजिक्स दिए, उसकी वजह से कंप्यूटर क्या कर रहा है, खुद से डिसीजन ले सकता है कि ये किस ग्रेड में लाई कर रही है वैल्यू, राइट। नेक्स्ट इज कैपेबिलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर। कैपेबिलिटीज से मुराद कंप्यूटर की काबिलियत, किस किस काम के काबिल है, ठीक है, क्या क्या उसकी काबिलियत है कंप्यूटर की। नंबर वन, स्पीड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ख्याल है बेटा आपके, जब आप ये वर्ड सुनते हैं कैपेबिलिटीज में स्पेशली स्पीड, व्हाट डू मीन बाय दिस? किसी के पास अगर कोई आंसर है, then you can raise your hand or you can reply me on a chat box. Okay, so I started. A computer can process data faster than any other machine designed to perform similar tasks. देखिए बेटा, कंप्यूटर के अलावा भी बहुत सी डिवाइसेस बनी हैं सिमिलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। व्हाट एक्चुअली वी कैन डू विद द कंप्यूटर, अगर मैं कंप्यूटर की हिस्ट्री में जाते हुए इसकी बात करूं, तो कंप्यूटर को बनाने का तो एक ही मकसद था, दैट इज ओनली अ कैलकुलेशन, ठीक है। तो इफ वी जस्ट डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशन, ठीक है, इसी को ही ले लेते हैं, देन कंप्यूटर की जो बेटा स्पीड है कैलकुलेशन की, इट इज मच मच मोर फास्टर देन एनी अदर डिवाइस। आप अगर एक सिंपल कैलकुलेटर ले लें और एक तरफ कंप्यूटर ले लें और दोनों में कैलकुलेशन करने बैठे, देन विनर विल बी द कंप्यूटर। कैसे? देखिए बेटा, कंप्यूटर में आपने एक वैल्यूज लिख दी, लाइक फॉर एग्जांपल 100 वैल्यूज, ठीक है, देन व्हेन यू एक्चुअली अप्लाई अ एडिशन फॉर्मूला, देन इट विल गिव यू अ रिजल्ट विद इन अ सेकेंड। लेकिन कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट करने में टाइम लग जाएगा, एंड देयर इज अ चांस ऑफ एनी एरर, आप कोई भी एक वैल्यू मिस कर सकते हैं, ठीक है, उस मैनुअल कैलकुलेशन में। व्हेन यू आर राइटिंग एनी वैल्यू और सॉरी टाइपिंग एनी वैल्यू ऑन अ कैलकुलेटर किसी एक पेज से देख के, देन देयर इज अ चांसेस ऑफ मिस्टेक, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कैलकुलेटर में आ सकती है, बट इन अनदर हैंड कंप्यूटर में ऐसा नहीं होगा। आपने वैल्यूज लिख दी हैं, उसके बाद आपने एक फॉर्मूला लगाना है, एंड देन इट विल कैलकुलेट बाय इटसेल्फ। सो कंप्यूटर हैज अ वेरी मच हाई स्पीड देन एनी अदर डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज repetition. This is also a very important thing. A computer can tirelessly perform the same operations millions of times in exactly the same way without getting bored and tired the way a human clerk would. होता क्या है, देखिए बेटा, मैं आपको एक टास्क दूं, फॉर एग्जांपल आई जस्ट गिव यू 10 वैल्यूज टू बी ऐड, ठीक है, कैलकुलेटर दूं 10 वैल्यूज दूं और मैं कहूं कि उनको ऐड करें, देन यू कैन डू दिस। मैं टास्क बढ़ा देता हूँ, इफ आई गिव यू 100 वैल्यू, देन अगेन यू विल डू दैट, टाइम लगेगा थोड़ा बट यू विल डू दैट। मैं अगर आपको 1000 वैल्यूज दे दूं, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम that the repetition of the same task actually make us tired, और हम बोर भी हो जाते हैं, हम इंसान है ना, सेम काम रिपीट हो रहा हो, देन वी एक्चुअली गेट बोर। सेम लेक्चर अगर मैं रोजाना दूं आपको, देन व्हाट विल हैपन, आप अपना इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे, आपको मजा ही नहीं आएगा। when you get a new information on a daily basis, then of course you will take a in, then you will involve in the class। तो होता ये हम रिपीटिशन जो है बेटा, हमें वो पसंद नहीं है इंसानों को, लेकिन कंप्यूटर में ये उसकी कैपेबिलिटी है दैट कंप्यूटर कैन डू अ सेम टास्क इन अ मिलियंस ऑफ टाइम, ना वो थकेगा और ना वो बोर होगा। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी।
computer is a high speed processing accompanied by high accuracy result. No other system can have as much accuracy as a computer system. ऐसे ही है, कंप्यूटर जो है बेटा वो जो अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है that is 100% accurate. There is not a single mistake. अगर कंप्यूटर के जो जनरेटेड रिजल्ट हैं उनमें अगर कोई मिस्टेक होती भी है तो उसकी वजह जो है वो ह्यूमन एरर हो सकता है, बट देयर इज नॉट अ सिंगल चांस ऑफ अ mistake from the computer side. Next is a logical operation. The computer can make decision based on the same condition and take alternative course of action accordingly. ये लास्ट उसमें भी हमने पढ़े थे, ठीक है, वही चीज है लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है, लॉजिकल फंक्शंस, लॉजिकल ऑपरेशन, दीज बोथ आर द सेम थिंग. स्टोर एंड रिकॉल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो मैंने लास्टली डिस्कस किया कि प्रीवियस में था मेमोरी, ठीक है, यहाँ इसको जरा और डिटेल में देखते हैं. कंप्यूटर कैन एक्चुअली स्टोर डेटा एंड इट कैन रिकॉल व्हेन नीडेड. कोई भी इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर भी होती है और जब आपको रिक्वायर्ड होती है वो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं. ये रिकॉल मीन्स हियर व्हेन यू फाइंड द फाइल. मिसाल के तौर पे आपने कंप्यूटर में एक फाइल सेव की थी एंड आफ्टर 2 days or 10 days you actually forget that where that file is located. So what you will do, you will find that file. So what actually happen when you find that file? जब आप उस फाइल को फाइंड करते हैं इट मीन्स दैट यू एक्चुअली रिकॉल दैट फाइल, ठीक है. अब हम इंसानों के साथ बेटा जो मेमोरी है उसमें प्रॉब्लम हमारे साथ सबसे बड़ी क्या है, दैट रिकॉल इंफॉर्मेशन. व्हाई होता ये बेटा कि हम जो है इंसान वो अपने दिमाग में जो डेटा हमारे स्टोर हो रहा होता है हम उसे उस तरह उस ऑर्डर में सॉर्ट करके नहीं रख सकते जिस तरह से कंप्यूटर रखता है. सो बिकॉज ऑफ दैट कंप्यूटर इज बेटर देन ह्यूमन रिकॉल इंफॉर्मेशन में. आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल हम आज किसी से मिलते हैं और उनका नेम वगैरह हमने जाना, ठीक है, आफ्टर 6 months और 1 year वी अगेन मीट अनदर प्लेस. तो अचानक से हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इन्हें कहीं देखा है, बट उनका नेम याद नहीं आ रहा होता. सो व्हाट डू मीन बाय दिस? रिकॉल इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम. 1-2 दिन के बाद अचानक आप घर पे कोई और काम में बिजी होते हैं और आपको उनका नेम याद आ जाता है. तो ये बेसिकली रिकॉल इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम हमारे साथ है. ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ चेकिंग. द कंप्यूटर वेरीफाइज द एक्यूरेसी ऑफ इट्स ओन वर्क बाय मींस ऑफ पैरिटी चेक. देखिए बेटा कंप्यूटर क्या करता है, व्हेन कंप्यूटर परफॉर्म एनी टास्क देन इट विल अगेन एंड अगेन चेक इट्स वर्क. ठीक है, आपको एक रिजल्ट जनरेट करके कंप्यूटर दे देगा एंड आफ्टर दैट इट विल अगेन चेक इट्स रिजल्ट दैट वेदर इट्स राइट और नॉट. ठीक है, अगेन चेक करेगा और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है प्रोसेस अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट गिव एनी अनदर टास्क टू द कंप्यूटर. ठीक है, वो कंटिन्यूसली इस टास्क को बैकएंड पे परफॉर्म करता है. नेक्स्ट इज अ सेल्फ ऑपरेटिंग. Once the data and program are feed into the computer memory, the computer is capable of executing the instruction on its own without human intervention. ये वही चीज है जो हमने previously डिस्कस की थी. ठीक है, कि आप एक मर्तबा प्रोग्राम को स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद फिर ह्यूमन इंटरवेंशन की मजीद जरूरत नहीं पड़ती और वो ऑटोमेटिकली उसको परफॉर्म करता रहता है. तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक था. Now, if there is any question, then you can raise your hand or you can post on a chat, then I will add your questions and answer it.